student, this is part 2 of exercise 3.5. In this video we are going to discuss some statement problem related to cross multiplication method. In last video which we have already discussed what is cross multiplication method and where this method is used. This method is used in case of condition when you are having two equations like a1x plus a2 b1y plus c1 is equals to 0 and other is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Fine. In these two equations, if you are having such kind of condition a1 by a2 not equal to b1 by b2, then this case we said it has unique solution and you are able to adopt cross multiplication method because this method is applicable only in the case of unique solution. Okay, so now we are going to discuss statement questions. So question number 4, the first question is form the pair of linear equation in the following problem and find the solution by cross multiplication method. Means first of all you have to form the equations and after that you have to find the answer by using cross multiplication method. So now first statement is a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the some number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as the hostel charge. Means कि अगर एक हॉस्टल है जिसके अंदर बच्चे को फिक्स चार्ज देना पड़ता है रहने के लिए प्लस जितने दिन उसने खाना खाया उसको पर डे के अकॉर्डिंग फिक्स वहाँ पे एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, रहने का चार्ज प्लस खाने का चार्ज. तो एक लड़की है दैट इज ए वो 20 डेज वहाँ पे रही और उसने कितना पे किया ₹1000 as a hostel charge. Whereas another student B, she take food for 26 days. एक अदर बच्चा है B जिसने 26 डेज के लिए फूड लिया और पे किया 1180 as the hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. अब आपको क्वेश्चन से हिंट मिल रहा है कि आपने क्या क्या चीजें assume करनी है, फिक्स चार्ज और cost of food per day. So what we have to write here, let fixed charge is equals to ₹x and cost of food per day is equals to ₹y. Now according to first condition, what is that? The student A take food for 20 days means वो बच्चा कितने दिन खाना ले रहा है 20 days, तो उसको फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा जो है, प्लस खाना कितने दिन खाया उसने 20 डेज. एक दिन का y था तो कितने दिन का हो गया 20 का 20y. So total she has paid 1000. So this is the first condition means fixed charge plus जितने दिन खाना खाया total how much she has paid 1000. Now second condition is another student B, she has taken food for 26 days means रहने का तो उसने चार्ज फिक्स दिया है x प्लस कितने दिन खाना खाया 26 days. So total she has paid 1180 rupees. So these are two conditions. So what we say that these are our required algebraic expressions. So now we have to solve by cross multiplication method. Okay. So now look beta here a1 by a2 not equal to b1 by b2. How? यहाँ पे आपके पास 1 है यहाँ भी 1 है तो 1 by 1 not equal to 20 by 26. अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करोगे तो दोनों की रेशियो सेम नहीं आएगी. सो दैट्स व्हाई इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू अडॉप्ट व्हिच मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. So for this method what you have to do, you have to make 0 first. आपने इक्वल टू में क्या बनाना है सबसे पहले 0 की जो भी टर्म आपकी राइट हैंड साइड है उसको आपने इस साइड ले जाना है. ऐसे सेकंड इक्वेशन x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल्स टू 0. नाउ क्या पढ़ा हमने अभी पिछली वीडियो में कि सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 2 3 1 2. सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कि 2312 एक नंबर लिख लीजिए आप. 2 मीन्स कि सेकंड टर्म पे कौन कौन सी चीजें आपको 20 और 26 एंड थर्ड नंबर पे -1000 एंड -1180. फर्स्ट नंबर पे दोनों जगह पे वैल्यू क्या है 11, सेकंड पे 20 और 26. उसके बाद आप इस नंबर को रब कर दीजिए. दिस वाज द रफ वर्क. आफ्टर दैट इन दोनों के बीच में मैंने क्या बोला, क्या लिखना आप लोगों को x एंड हियर
y, and here y. So look what you have to do now. Just like this. ये 3 टर्म्स थी हमारे पास x, y और 1. टॉप टू बॉटम 20 इंटू -1180. 2 8s are 16, 2 1s are 1, 2 or 1 3, 2 3 16. Now this minus is a formula. After that this one 26 into -1000 -26,000. Now here -1000 into 1 -1000. This minus is for formula. -1180 into 1 -1180. Now friend, again top to bottom 1 into 26 26, 1 into 20 22, 20. Now -2360 0 plus 26,000 is equals to y upon -1000 plus 1180, because minus minus plus. Now what it becomes? 10 में 6 गए बेटा 4. After that 5 में 3 गए 2, and 2 में से 2 गए 0. Here 1180, and here you are having 1/6. Now look what you have to do. Sorry, here we are having x. Okay, here we are having x. 1 is here only. Okay, so now compare. अब हम क्या करेंगे, एक तो वेरिएबल वाले टर्म को और एक सिंपल जो फॉर्म में. हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, इसके बाद हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे. तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास x by 2400 is equals to 1/6. Another side y by 180 is equals to 1/6. So x is equals to 2400/6. This is 400, and what it is 180/6 30. So फिक्स चार्ज कितना है बेटा 400 रुपीज तो लगेंगे. कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितनी आई, एक दिन का चार्ज कितना था ₹30. Yes, any problem? This was all about this question. So now next question. Next part is third part. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for the correct answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for each incorrect answers, then Yash would have scored 50 marks. तो दो कंडीशन दी है यश के लिए. How many questions were in the test? So what you have to write first? Look, let correct answers is equals to x, wrong answers is equals to y. Now first question, first condition, यश got 40 marks. टोटल उसको कितना मिला 40. 3 marks for right answer या correct answer. Correct 3 marks. एक के लिए x है तो 3 के लिए कितने हो गए 3x. And losing 1 mark. Losing means minus 1 marks for wrong answer. And total she got 40. Total she got 40. Now second condition. Second condition. Next situation, 4 marks awarded for the correct answer. So plus sign is here. And 2 marks deducted for wrong answer. So minus. Deducted means minus. And total he got 50 marks. Here also you can check. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. So it's a unique solution. So it has unique solution. तो अब हम क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है तो आंसर्स कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. So just write here cross multiplication method. First make
इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और इक्वल्स टू में क्या बनाएंगे हम 0। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, रफली हम क्या लिखते हैं 2 3 1 2। सेकेंड नंबर पे क्या वैल्यू है -1 एंड -2। थर्ड नंबर पे -40 एंड -50। फर्स्ट नंबर पे 3 और 4। सेकेंड नंबर पे अगेन -1 एंड -2। फिर रब कर दो इस चीज को। इनके बीच में क्या लिखना था, x here y and there 1। now again same thing, x upon y upon and 1 upon -1 into -50 50। this minus is for formula, -2 into -40 +80, -40 into 4 -160। this minus is for formula, -50 into 3 -150, 3 into -2 -6, 4 into -1 -4, and this 4 minus is for formula। any problem? But it becomes 50 minus 80 -30, -60 160 plus 150 -10, -6 plus 4 -2। now compare first and third, after that second and third। पहले मैंने इस फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, फिर सेकंड और माइनस साइन कैंसिल हुए, माइनस साइन। सो 30/2 व्हाट इज x 15, माइनस कैंसिल विथ माइनस 10/2 5। सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स that are 15 and wrong answers, number of wrong answers that are 5। so total questions in exam कितने थे बेटा, जिसमें से 15 करेक्ट हुए 5 रॉन्ग हुए, तो टोटल कितने होंगे 15 plus 5 20। so question was find the total number of question in the exam, total number of question in the exam was 20। so this was all about this question। next question is the place A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, कि दो प्लेसेस हैं A और B, वो एक दूसरे से कितना दूर है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम, कि एक कार है जो A और दूसरी कार है B, दोनों सेम टाइम पे चलती हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। मीन्स अगर वो डिफरेंट स्पीड से चलती हैं तो 5 आवर्स के बाद मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं, पहले क्या था सेम डायरेक्शन में चलती है, अब क्या है ऑपोजिट चलती हैं। दे विल मीट आफ्टर 1 आवर, वो 1 घंटे के बाद एक दूसरे को मिलेंगे। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, सो व्हाट वी हैव टू राइट, लेट स्पीड ऑफ कार A that is x kilometer per hour, speed of car B y kilometer per hour। now according to first condition, हाँ जी, इसको शुरू करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ऑलरेडी आपने फिजिक्स में पढ़ा है बेटा, d क्या होता है s इनटू t, मींस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। फर्स्ट कार, अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, टाइम है 5 आवर्स। क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 आवर्स के बाद वो एक दूसरे को मिलते हैं। अगर वो सेम डिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या बन गया डिस्टेंस पहले के लिए, स्पीड कितनी थी पहले की x और टाइम कितना था 5, तो फर्स्ट कार के लिए कितना बन गया 5x। सेकंड कार के लिए स्पीड कितनी है y, पर टाइम अगेन सेम कि 5 आवर्स के बाद मिलते हैं तो 5y। टोटल डिस्टेंस दोनों ने कितना जाना है 100 किलोमीटर अपार्ट है, तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या आ जाएगा 100, बट सेम डायरेक्शन है इसलिए साइन हमेशा माइनस। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है माइनस, तो इसलिए क्या बना माइनस का साइन आया। अब अपोजिट डायरेक्शन है, सेम फॉर्मूला, कितनी देर बाद मिलते हैं 1 आवर के लिए, तो फर्स्ट गाड़ी का टाइम कितना हो गया 1x और सेकंड के लिए 1y, बट साइन कौन सा आएगा प्लस का, क्योंकि ऑपोजिट में जाएंगे तो साइन कौन सा चेंज होता है माइनस से प्लस। तो टोटल डिस्टेंस कितना जाना था 100। अभी हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, यहाँ भी हम क्या देखते हैं a1/a2, 5/1 minus 5/1 both are not equal, so it has यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्या करते हैं सबसे पहले इक्वेशंस में इक्वल टू में 0, 5x माइनस 5y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए 1x माइनस 1y 1x प्लस 1y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू में 0 बनाया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद हमने क्या कहा था, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख लो 2 3 1 2 मीन सेकेंड टर्म पे क्या वैल्यूज है -5 और 1, थर्ड टर्म नंबर पे -100 फर्स्ट पे 5 और 1, सेकेंड पे -5 और 1। फिर इसको रख कर दो आप। इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, सो नाउ अगेन इनके बीच में क्या लिखेंगे, x here y here 1, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, हाँ जी, टॉप टू बॉटम -5 इंटू -100 500 माइनस फॉर्मूले वाला 1 इंटू -100 -100 -100 इंटू 1 -100 -100 इंटू 5 -500 अगेन 5 1 जार 5 -4 formula 1 into -5 -5. So what it becomes beta? Minus minus plus 500 plus 100 600 minus minus plus -100 plus 500 you got 400 minus minus plus 5 plus 5 10. कंपेयर किसको करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, फिर सेकंड और थर्ड को। 0 cancel with 0, what is your x? 60. Here also 0 cancel with 0, y is 40. So these are speed, right, kilometer per hour. So speed of car A is 60 kilometer per hour and speed of car B that is 40 kilometer per hour. मतलब वो दोनों इतनी स्पीड से चल रही थी, कार A 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और B 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप इट्स क्लियर टू यू, सो थैंक यू।